back to the third season of Heroes of Ahmedabad, an initiative where we get opportunities to interact with inspiring individuals from our city who made remarkable difference in their field. Some journeys begin with a single step, but for our guest today, the journey began with a rhythm from humming tunes in childhood. Same way, today, I, Himadri Gajjar, with my co-partner, Tanishka Ambekar, are going to invite our guest today in a very unique way. ta thai tat tat thai a thai tat tat thai 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 ta thai thai tat ta ta thai thai ta thai thai tat ta ta thai thai ta thai thai tat ta ta tat ta ta tat ta ta thai thai tat a thai thai tat. This was the best way to introduce our guest today, Mrs. Jigisha Mehta, a Kathak dancer, teacher and a creative spirit. She is a respected senior instructor at Anarth Foundation of Kathak dance based in Ahmedabad. With her deep-rooted commitment, sensitive teaching approach and a keen ability to weave emotional nuance in a rhythmic form, she plays a vital role in the school's ethos of discipline yet compassionate pedagogy. She brings the essence of tradition alive through both technical finesse and thoughtful expression, nurturing each student as they journey through dance as sadhana, not just performance. Her talent has anchored on the platforms like Doordarshan and Akashvani, and today she carries forward her legacy with more than 14 years in training in Indian classical dance and music. She is not just a performer but a guide who lights the path of future artists. Let's welcome the artist whose every step tells a story, Srimati Jigisha Mehta. Thank you so much. Hello, ma'am. Hello. As we all know that you are a classical dancer as well as a classical singer and a narrator. Is there anything else that you do we don't know? Please let us know your journey through all of it. तो जैसे ही आपने सवाल पूछा कि तो म्यूज़िक और डांस तो मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं लिखती भी हूँ. But as I said that my writing is all about self-realization, and we all know that self-realization is very rare. तो हाँ, कभी कभी लिखती भी हूँ. और जो नरेशन मैं जो करती हूँ वो रीडिंग का मुझे बहुत शौक़ है. पेंटिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन पेंटिंग भी कभी कभी मैं करती हूँ, नॉट रेगुलरली, बट हाँ करती हूँ. और मुझे कोई भी फॉर्म्स पसंद नहीं है. इफ़ आई एम लाइक पेंटिंग एनीथिंग देन आई डोंट लाइक एनी पर्टिकुलर फॉर्म्स, कि एस्पेशली ह्यूमन फॉर्म्स आई डोंट लाइक. So that random figure and everything, I love that kind of paintings more than any specific figure. Okay. So yes. Wow. How do the different art forms like music, dance, poetry come together to complement each other in your life as well as in your art? कोई भी फॉर्म होता है, अगर आर्ट फॉर्म हो या कोई भी, शायद मैं तो कभी कभी ऐसा मानती हूँ कि जो मेडिकल साइंस है, जब कोई भी ऐसी चीज़ है, हमको ऐसा लगता है कि इट्स लाइक इंजीनियरिंग और दिस मेडिकल, दे आर नॉट आर्टिस्ट, बट एक्चुअली वी ऑल आर आर्टिस्ट. अगर गलती से भी डॉक्टर ने गलत कट कर दिया और दवाई बनाना, मेडिसिन्स बनाना, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ आर्ट. कुछ भी गलत केमिकल मिक्स हो गया तो ख़त्म हो जाती है हमारी ज़िंदगी. सो एवरीथिंग इज़ आर्ट, बट ऑफ कोर्स डांस, म्यूज़िक और एनी आर्ट फॉर्म, इफ़ वी गो लाइक स्पेसिफिकली डांस, म्यूज़िक और एनी आर्ट फॉर्म लाइक पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग, दे ऑल आर लाइक कनेक्टेड. व्हेन यू आर डूइंग पेंटिंग्स ऑल्सो, इट्स अ काइंड ऑफ रिदम. अगर आउट ऑफ रिदम आप पेंटिंग में भी चले जाते हो तो वो हमको ऐसा लगता है कि इट्स अ स्ट्रोक, बट एक्चुअली इट्स अ रिदम, कि आपके हाथ में रिदम है तो ही आप वो पेंटिंग को बना सकते हो. तो कहीं ना कहीं वो आर्ट फॉर्म हर किसी के साथ जुड़ा. म्यूज़िक में भी व्हेन यू आर लाइक सिंगिंग, फॉर ऑफ कोर्स यू हैव टू सिट एंड सिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज ऑलरेडी यू आर डांसिंग एंड यू आर मूविंग, यू नो. यू कैन सिंग sitting just like this and you can't sing. Yeah.
सो या एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. और कोई भी आर्ट फॉर्म हो या कोई भी, इफ़ यू आर लाइक पैशनेट, तो वो हमें डिसिप्लिन करता है, ऑर्गेनाइज्ड करता है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. Is there any measures or advice you would like to give to a person who has zero musical background but still wants to build a strong foundation in classical music and singing? Only one thing, that you have to be like disciplined. At least if you don't have any knowledge, then just go through certain things. These days it's very easily you get YouTube videos and everything. But if you don't have that possibility and you don't have that thing, then listen, go to the different events, और ऐसे ऐसे लोगों से मिलना शुरू करो, उसका इंफॉर्मेशन गैदर करो, और अब अंदर जो भी चल रहा है उसको सर्च करो, और शायद वो आपको पाथ मिल जाएगा. और म्यूज़िक में भी अब तो बहुत सारे possibility है, YouTube videos and this and that and so many things. You can go through that thing and you can discover yourself. Whatever is going inside you, you can discover that thing very easily. Yes. While researching about you, we found that your artist journey begins with singing. How did you cross path with Kathak and what inspired you? मैंने शुरू किया म्यूज़िक से अपना, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरे अंदर हमेशा एक डांस चलता रहता था, और शायद मैं उसको कथक का नाम देती थी. और ड्यूरिंग दोज टाइम्स ओनली दूरदर्शन वॉज देयर. तो जितने भी आर्टिस्ट आते थे दूरदर्शन पे कथक के, तो मैं जब उनको देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सीखना है. और उसके बाद वो क्वेश्चन मेरे अंदर हमेशा चलता रहा कि जो अंदर मेरे डांस अंदर चल रहा है उसको मैं कथक का नाम दे रही हूँ, और ये जो मैं देख रही हूँ वो कथक ही है, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है? बिकॉज आई डोंट वांट टू लर्न दिस कथक, देन व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड मी, जिसको मैं नाम दे रही हूँ कथक का. और बहुत सालों तक वो सर्च मेरा चलता रहा, और सडनली एक दिन मैंने एक फेस्टिवल में मौलिक भाई का डांस देखा, कथक डांस, एंड मैंने डिसाइड किया कि ही इज़ माई गुरु. सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वेरी लॉन्ग स्टोरी, हाउ आई नो कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर मैं वो कहने जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा. लेकिन येस, माई search ended there when I saw Maulik Bhai's dance, and yes. Then after my marriage, I started learning Kathak dance. So that time I was 28 when I started learning Kathak dance. As a classical dancer myself, I too want to build my career around this particular field. Where should I, as well as fellow students like me, should begin with? As a student. So are you like interested in only dance? Equally you are, no, but you equally interested in your studies. Yeah. 100%. Yes. Then just you have to be like very disciplined, very disciplined. You have to, every day you have to set your schedule and goals and everything. So you have to be like very disciplined about yourself. Because if you want to go into medical, so many students are coming, they want to pursue medical science and they want to continue with the dance form or music or anything. So they really have to work hard. Only this thing, और बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल साइंस टफ है. इंजीनियरिंग में जाते हो तो वो भी टफ है, सब कुछ टफ है. डांस इज़ ऑल्सो लाइक डांस और म्यूज़िक एनीथिंग, बहुत सारे एनर्जी जाते हैं कोई भी. तो आइदर यू हैव टू चूज़ बिटवीन वन थिंग दैट आई वांट टू स्टडी or just I want to be a dancer or musician or anything, or else you have to be like disciplined about yourself. As a Kathak student, I often struggle to balance study, performance, practice together. How did you manage as a student?
I was bad. I was very bad. मैं जब 10th में थी तो मुझे पढ़ाने के लिए एक सर आते थे मैथ्स। वो इतने बोर हो जाते थे क्योंकि जैसे ही वो मुझे कोई भी सम देते थे तो मैं गाना शुरू कर देती थी, या तो मेरी जो गिनती होती थी वो मेरे मैथ्स के टीचर थे, लेकिन जो मेरी गिनती होती थी वो म्यूज़िक की गिनती होती थी। तो वो मुझे समझा रहे और मैं 16 बीट ताल जो है 3 ताल उसकी गिनती कर रही हूँ। सो वो चाय पी के बाथरूम में चले जाते थे और 20 मिनट्स के बाद आते थे, तभी भी मेरा वही स्टेप हो रहा जब वो अंदर गए होते हैं और वापस आते थे। सो आई वॉज लाइक रियली वेरी वर्स्ट, सो आई कैन नॉट गिव यू एनी एडवाइस, बट येस इन अदर सब्जेक्ट्स आई वॉज लाइक रियली वेरी गुड इन माई लैंग्वेज एंड बट मैथ्स somehow I didn't like maths and but yes, for other things, say for example my music, for my dance, I was very disciplined. My guruji was like so strict about everything. जो जब विंटर होता था तो वो मुझे सुबह 6 बजे बुलाते थे and you cannot reach to his place at 6:05 और मैं गांधीनगर से अप डाउन करती थी। मैं 3 बजे उठ जाती थी और मैं उनके पास 6 बजे डॉट पहुंच जाती थी। और मुझे बहुत सारे बस, ऑटोज़, और मेरे डैडी मुझे ऑटो के लिए, आई एम वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, वी बोथ सिस्टर्स आर वेरी पैम्पर्ड, बट इन सम केसेस, इन सम थिंग्स माई फादर वॉज नॉट गिविंग अस मनी. You have to fight, you have to struggle, you have to train yourself for everything. So it's your dream, so you decide that how you will reach to that point. So हाँ, तो मैं बहुत सारे बस शिफ्ट करती थी और सुबह 6 बजे पहुँच जाती थी. एक बार ऐसा हुआ था कि मैं 6:05 को पहुँची थी और मेरे गुरुजी घड़ी के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे पूछा था कि कितना टाइम हुआ. तो मैंने गुरुजी से कहा, कृष्णकांत भाई परिख मेरे गुरुजी का नाम है. तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने बजे घड़ी में, तो मैंने कहा 6:05, जाओ घर. और उस दिन उन्होंने मुझे सच में गाना नहीं सिखाया था. उनकी जो हमारी गुरु माँ थी उन्होंने बोला था कि जाओ नीचे जाकर तुम प्रैक्टिस करो. लेकिन गुरुजी ने उस दिन मुझे नहीं सिखाया था. उन्होंने मुझे बोला था कि बस ये हो या कुछ भी हो, वो तेरा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम है. तेरी बस मिस हो जाएगी तो तू 7 बजे पहुँचेगी, तो क्या मैं तुझे 7 बजे सिखाना शुरू करूँगा? यू हैव डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू बी इन दिस फील्ड और मुझे सीखना है, तो तुम्हें कैसे भी करके पहुँचना होगा. यू हैव टू बी दैट डिसिप्लिन. हाँ, लेकिन मैनेज करती थी मैं, मैनेज करती थी. एक्सेप्ट मैथ्स, मैं हर जगह पर मैनेज करती थी. मेरे साइंस भी मेरा इतना ख़राब नहीं था. मेरे पापा डॉक्टर हैं और माँ इज़ इनटू लिटरेचर, तो माँ ने MA विथ हिंदी किया है, तो माँ बहुत मेरे पीछे पड़ी रहती थी. तो हाँ, माँ की वजह से शायद मैं पढ़ पाई. BA मैंने जो भी किया, भले मार्क्स कभी ख़राब नहीं आए, लेकिन मैं पढ़ पाई, ग्रेजुएट हो पाई, वो उसकी वजह से. अदरवाइज़ मेरा माइंडसेट नहीं था कि मैं पढ़ाई करूँ, टिपिकली पढ़ाई करूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स I'm always into like studies, reading and everything, learning new things. I'm always into that, but in a different way. I was into Shreyas Foundation. Shreyas स्कूल में थी मैं, तो वहाँ सिखाने का एग्जामिनेशन मैथड ही नहीं था वहाँ पर. आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते. अगर आप से फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टीचिंग यू समथिंग एंड आई एम अनेबल टू टीच यू, देन इट्स माई फॉल्ट, नॉट योर फॉल्ट. सो यस, श्रेयस में आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते. आपको अपने आप को बेहतर बनाना होगा हर पॉइंट पे कि आप बच्चों को वो बात कन्वे कर सको. और थे मेरे एक, वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो जो जिनके पास वो पाल बाबू करके थे और वो हमें मिट्टी के अलग अलग पॉट्स वो सब बनाना सिखाते थे और मुझे नहीं पढ़ना होता था. तो कैसे मैंने म लिखना शुरू किया था, इट्स अ स्टोरी. लेकिन हाँ, ऐसा था कि
तो आप उस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं कि आपको सोचना होगा कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को सेट करना है। इन फॉर एवरी पॉइंट you have to be like conscious about each and every step. If you want to do music also, if you want to do dance also, if you want to study also, then you have to give time in particular time कि हाँ इतना टाइम मैं रियाज़ को दूँगी, इतना टाइम मैं मेरी पढ़ाई को दूँगी। और पढ़ाई में भी 7 सब्जेक्ट्स है, तो 7 सब्जेक्ट्स कैसे, सोशल लाइफ भी है, फ्रेंड्स भी है, तो वो सबको मैं मैनेज कैसे कर पाऊँगी। यू हैव टू फाइंड आउट योर वेज। ऑलवेज पीपल आर देयर टू हेल्प यू, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, ऑलवेज दे आर देयर, बट एक्चुअली इट्स यू दैट you have to be like conscious about yourself. Classical dance is a very disciplined art form, and nowadays we don't see people adapting it more. What do you think is the key reason behind it? Actually, I don't see that way. People are learning and people want to learn any classical form. Only thing is that you require patience for that. It's not like hip hop 1, 2, 3, 4 kind of thing. So maybe because of that reason you both are into classical dances. So you know that one age is like 7 years is compulsory. So because only thing people are like not much interested because they want fast results. So that is not possible. लेकिन लोगों को अच्छा लगता है when they are seeing performances, oh my god, ये कितना खूबसूरत डांस फॉर्म है। लेकिन जब हमारे पास वो देखकर ही पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स का फर्स्ट सवाल यही होता है कि मेरा बच्चा 2-3 साल में सीख जाएगा डांस। वो नहीं होता, और बच्चे भी शायद बोर हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को 1, 2, 3, 4 at least for 1 year they feel like mom મને નથી interest, I don't want to go because but at least मैंने हमारे क्लास में ये देखा है कि कोई बच्चा मोस्टली नहीं जाता है वापस। the way we teach and the way मौलिक भाई and इशिरा बहन has trained us, और मौलिक भाई इशिरा बहन भी आते हैं हमारे क्लास में, तो वो जिस तरीके से सिखाते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टीचर्स का रोल, गुरु का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उसको बच्चों में वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है वो आप करेंगे तो बच्चे मोस्टली नहीं जाते हैं। उन लोगों को अच्छा लगता है बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कड़ांधा कतदा ना दिन दिन ना, वो सारे जब बोल्स आते हैं तो उन लोगों को बहुत ही मज़ा आना शुरू हो जाते हैं कि डिफरेंट बोल्स आते हैं, रिदम्स आते हैं, जो वेस्टर्न डांस में उन लोगों को सिर्फ रिदम मिलता है, एक पैपी डांस और डांस करने का मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बोल्स आते हैं अलग अलग। तो मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन साथ में शायद एक ही चीज़ ऐड करनी है, पेशेंस। और ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को भी ज़्यादा पता नहीं होता है, तो नेचुरली बच्चों को वो नहीं, नेचुरली नॉलेज नहीं होता, पेरेंट्स को ही नॉलेज नहीं होता कि व्हाट इज़ क्लासिकल फॉर्म, हर पेरेंट्स को नहीं होता। तो शायद वो एक है, लेकिन जिस तरीके से मैं आजकल सिनारियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोग सीखना नहीं चाहते, सीखना चाहते हैं। इवन मैं जब मैंने अपना म्यूज़िक प्रैक्टिस वापस शुरू किया है, बहुत साल बंद रहा, तो जिनके पास मैं म्यूज़िक प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ वहाँ पर एक बहुत छोटी सी लड़की आती है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर गाती है और प्योर क्लासिकल फॉर्म सीखती है, और उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, दे आर लाइक रियली वेरी सिंसियर अबाउट देयर सिंगिंग, देयर क्लासिकल सिंगिंग in ragas also. They want to learn bada khayal, they want to learn छोटा ख्याल, they want to sing ताने जो होती है वो सारी उनको अच्छी लगती है। So I don't think so that is 100% true.
Does poetry influence any other art form you do? Yes, dance. Of course, music also. How does poetry influence the way you interpret or present your dance? हर पोएट्री का अपना एक टेम्परामेंट होता है और हर कोई भी वर्ड आप बोलते हैं ना, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो तो उसका एक साउंड होता है। तो वो साउंड आप डांस में या म्यूज़िक में भी वो साउंड क्या प्रोड्यूस कर सकता है, कैसी पॉसिबिलिटीज़ है, वो आप उसको सर्च कर सकते हो। तो कोई भी पोइट्री, और एक ही पोइट्री को बोलने का बहुत सारे तरीके होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड इफ दैट इज़ लाइक वेरी सीरियस काइंड ऑफ पोइट्री एंड एवरीथिंग, then I always like it, even if it is like aggressive or loud poetry. I like passive aggression. I never like to scream about things. I never like to shout about things. So same thing you can apply. जो चीज़ मैं वॉइस के थ्रू से एक्सप्रेस करती हूँ वही चीज़ आप डांस और म्यूज़िक में भी कर सकते हैं। Not necessarily every time if you are like upset with things, then you have to dance in a very loud way or something. So this way you can interpret yourself कि कैसे आपको उस पोएट्री को प्रेजेंट करना है, उस नरेशन को प्रेजेंट करना है और एक्सप्रेशन कैसे आप दे सकती हैं, उस तरीके से यू कैन डू दैट थिंग। और साउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर उसको आप साइलेंटली उस साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो साउंड आपको बहुत कुछ दे जाता है। सो इवन इफ आई एम नॉट शाउटिंग, इफ आई वांट टू आस्क यू कहाँ से आ रही हो, वही चीज़ मैं शांति से भी पूछ सकती हूँ कहाँ से आ रही हूँ, लेकिन वो उतना ही उसकी इम्पैक्ट और उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो उतना ही होगा। एवरी टाइम यू डोंट हैव टू शाउट अबाउट थिंग्स एंड एवरी टाइम यू डोंट हैव टू स्क्रीम अबाउट थिंग्स। डिमांडिंग आप अलग तरीके से भी हो सकते हैं और आपको जो कन्वे करना है वो आप शांति से भी कन्वे कर सकते हैं। सेम थिंग पोइट्री एक ऐसी चीज़ है कि उसमें से आप सब कुछ ढूंढ सकते हो, डांस भी ढूंढ सकते हो, म्यूज़िक भी ढूंढ सकते हो। तो वही सारी चीज़ें आप उसमें लाकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। Can you share a recital or a performance that has stayed with you as a special memory? हाँ, कुंवर नारायण जी, उनकी पोएट्रीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और उनके रिसाइटेशन और वो उनका जो कहने का तरीका होता है बहुत सिंपल होता है। उनकी लैंग्वेज बहुत ही बुज़ुर्ग अब तो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनका जो तरीका है कहने का वो बहुत ही अलग तरीका है। वो कभी बात को सीधी तरीके से नहीं, बहुत सिंपल राइटिंग होता है। से फॉर एग्जांपल उनका एक बहुत ही छोटा सा 2 पंक्ति है उसकी और उसका एक एक्सटेंशन है, तो वो ऐसा है कि हम हमेशा लोग झगड़ते रहते हैं। वी आर लाइक कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ फाइटिंग एंड टॉपिक कि क्या किसमें कुछ निकालूं, तो वी आर ऑलवेज। तो उनका कहने का था कि इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि ज़रा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। तो बहुत सारे गॉसिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है कि जो कांस्टेंट आप उसके पीछे अपना मन, और नो वी हैव दिस मेंटालिटी दैट constantly we are in search of that kind of thing and still we want peace, and that is not possible because you want that kind of gossip। और दुनिया में क्या चल रहा है, शांति से ज़िंदगी बीतती है तो आपको अच्छा भी नहीं लगता और जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं लगता। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि बहुत कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, कितना कुछ था, लेकिन इतना सा प्यार मिला, प्यार तो इतना ही मिला, लेकिन वो उसमें इतना सुकून था
कि पूरा जीवन बीत गया। और उसका एक एक्सटेंशन भी है, बहुत ही खूबसूरत, वो भी पोएट्री है। उसकी एक दो लाइन ही मैं कहूँगी क्योंकि थोड़ी लंबी है, कि एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों, एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिन पर दिन क्षीण पड़ती जा रही। कि कितनी मुश्किल में हूँ इन दिनों, कि मेरे में जो वो ताकत है नफरत करने की, वो दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है। तो मैं मुश्किल में हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को नफरत करूँ, भरपूर नफरत करूँ। और उन्होंने उसके बाद बहुत सारे कि मुसलमानों से नफरत करना चाहता, पर सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने। ऐसे हर लोगों के बारे में उन्होंने कहा है। तो एक બીજા પણ એક લેખક છે કે જેમનું રાઇટિંગ મને બહુ જ ગમે છે, विनोद कुमार शुक्ला करके हैं। विनोद कुमार शुक्ला ऐसा लिखते हैं कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। वह मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चल दिए, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया। तो ऐसे जो इमोशंस होते हैं, और शायद मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ें, लेकिन हमेशा मुझे डार्क राइटिंग भी पसंद नहीं है, लेकिन जहाँ पर डार्क मूवीज़ भी पसंद नहीं है, लेकिन डार्क मूवीज़ भी मुझे पसंद है और डार्क राइटिंग्स में भी मुझे पसंद है। बट उसमें लास्ट में कुछ ऐसा बाहर आना चाहिए कि जहाँ पर होप हो, कि पॉसिबिलिटी हो कि हाँ यहाँ पर उजाला हो सकता है, सिर्फ डार्क ही नहीं रहेगा। और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी कुंवर नारायण जी की जो पूरी वो पोएम है, वो बहुत खूबसूरत है। Many people know you through your reels and storytelling. What inspired you to begin sharing in this style? मेरा हमेशा ऐसा है कि आई एम लाइक वेरी क्विक इन माई रिएक्शंस। तो मैं जब पढ़ती हूँ तो वो जो राइटिंग होता है वो ही मुझे इंस्पायर करता है कि इस तरीके से। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ट्राई नहीं करती कि मैं इसी तरीके से रिसाइटेशन करूँ। हाँ, बहुत सारे बार मैं उसका रिसाइटेशन करती हूँ, लेकिन वो परफेक्ट लहजा और वो लोगों को अच्छी तरीके से कन्वे हो जाए, उसकी वजह से शायद मैं करती हूँ। अदरवाइज़ बेसिकली आई एम ए एक्सप्रेसिव पर्सन। और वो जो राइटिंग होता है वो ही मुझे इंस्पायर करता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को वो हर राइटिंग में, और टुकड़ा भी अगर हम लेते हैं या म्यूज़िक का कोई पीस भी लेते हैं, तो हर राइटिंग में, हर टुकड़े में वो एक्सप्रेशन होता ही है कि आप उसको किस तरीके से करो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको उतना सेंसिटिव होना पड़ेगा। व्हाट यू आर रिसाइटिंग और व्हाट यू आर, उसको सिर्फ और सिर्फ टैलेंट तक मत सीमित रखो, उसको फील करो। तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर फीलिंग एनीथिंग, यू नो, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशन आ ही जाते हैं। वो डीप डाउन अगर आपने फील नहीं किया है तो वो एक्सप्रेशन कभी नहीं आएगा। फॉर यू इट्स लाइक जस्ट you are doing recitation and you are dancing and you are singing and everything, but when you feel that thing, वो जो एक्सप्रेशन, बहुत सारे लोग कभी कभी मुझे मैसेज भी करते हैं कि यू आर लाइक योर राइटिंग और योर रिसाइटेशन इज़ लाइक वेरी कन्विंसिंग। तो द ओनली आंसर इज़ कि आप खुद को पहले आपको कन्विंस होना पड़ेगा उस राइटिंग के साथ, और उस किसी भी चीज़ के साथ उसको एडप्ट करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरीके से अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हो और आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिसाइटेशन, आई एम नॉट
ओनली आई एम नॉट डूइंग रिसाइटेशन, मैं जो फील करती हूँ वो बाहर आता है, तो वो फील करना ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी है. Social media has been a vital routine in today's generation. We know that you two are pretty active on it. Do you think it is a nuance, distraction, or a place to build a community? अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे, अगर उसका प्रेशर रहा कि कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूज़ मिले, सो देन इट्स अ डेंजरस थिंग, अदरवाइज इट्स अ गुड थिंग. सेंसिबली उसका यूज़ करो, पागल मत बनो उसके पीछे, तो आप अपनी बातें पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, पूरी दुनिया तक. वो स्ट्रेंथ है. लेकिन अगर आप उसका मिसयूज़ करते हो तो आपके लिए भी ख़राब है और लोगों के लिए तो ख़राब है ही है. लेकिन वी आर नॉट, मौलिक भाई निशिरा बहन इज़ ऑलवेज सेइंग इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम. अगर उसका गलत इस्तेमाल आप लोगों ने किया, इसीलिए हम लोग हद से ज़्यादा, मैं अपने डांस वीडियोस या हम लोग कोई स्टूडेंट अपने हद से ज़्यादा डांस वीडियोस नहीं रखते हैं. मौलिक भाई निशिरा बहन, दे आर लाइक बिग नेम्स बट दे आर नॉट आफ्टर सोशल मीडिया. हमें हमारी टैलेंट के बारे में पता होना चाहिए. हम उसका हेल्प लेते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ गुड थिंग. लेकिन उसी के बेस पर हम लोग उसको अपने आप को जज करेंगे कि अगर मुझे व्यूज़ अच्छे नहीं मिले तो देन आई एम नॉट अ गुड डांसर, आई एम नॉट गुड सिंगर, और वॉट एवर आई एम कन्वेइंग थ्रू, आई एम नॉट गुड एट इट. बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो भी होते हैं, रिसेंटली आई हैव हर्ड दैट दे वन गर्ल डिड सुसाइड और समथिंग. ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा कुछ न कुछ पागलपन करते रहते हैं. सो इसका ज़रूरत नहीं है. अपने आप को सही तरीके से उस मीडियम को यूज़ करो, so it's a good thing. Kathak has many aspects like Parana, Tukda, Abhinay, etc. From your experience, which is most challenging and how students can improve? Everything. Paran is equally difficult, Thaat is equally difficult, then Tukdas. Everything is difficult because Thaat has a different energy. Yes, you require very controlled body. When you are doing Paran, you require speed and everything. So તમારું body speed માં પણ એટલું જ ફરવું જોઈએ. So everything is difficult. You just have to practice in expression. If you are doing like Thumri or any Abhinaya, then you have to focus on your expression also, but at the same time your body is the most important thing. That body wise પણ એટલું જ તે તમારે કમ્ફર્ટેબલ રહેવું પડે, તમારું બોડી એટલું જ સરસ એ વસ્તુને પણ, એટલે માત્ર ને માત્ર ત્યારે ફેસ નથી યુઝ થતો, full body is expressing. So everything is difficult. There is nothing you can say that this one is like little easy, this one is like more difficult. You can't say that. Everything for everything you have to do a practice, whether that is Thaat, whether that is Paran, whether that is Tukda, whether that is Abhinaya, everything you have to practice for that. We also got to know that your sister has practiced Bharatnatyam, whereas you chose Kathak. Is there any reason behind it? Just my body is like more comfortable. And I say this to all students also, and this I believe in, that know your style. Everything is beautiful. लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, they are like really very good in Bharatnatyam, but when they are like doing Kathak, शायद उनको इतना नहीं सूट करता. और शायद कथक जिनको सूट करता है, मैं जब भरतनाट्यम करती थी, माई बॉडी वॉज नॉट लाइक कम्फर्टेबल. आई हैव लर्न लाइक येस, and that teacher told me also that you are good in Bharatanatyam, but I was not feeling comfortable. तो हाँ, हर एक का अपना एक बॉडी का स्टाइल होता है. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हर डांस फॉर्म में बहुत ही अच्छे होते हैं, whether they are doing Bharatanatyam, whether they are doing Kathak, or whether they are doing Western dance. Very few people are. But जो मेरा टेम्परामेंट था उसमें शायद मैं कनेक्ट ज़्यादा, कथक में जो सरप्राइजेस है, कथक में जो एक
क्विक मूवमेंट सा फील है, जो एक फ्लेयर है, शायद मैं अपने आप को कंफर्टेबल, माई सिस्टर वॉज लाइक रियली वेरी गुड भरतनाट्यम डांसर, लेकिन शायद मैं वो जोमेट्रिकल एंगल वो जो था उससे मैं कंफर्टेबल नहीं थी. माई बॉडी वॉज नॉट, हाँ, बट इक्वली आई लाइक ભરતનાટ્યમ, आई लाइक ઓડિસી ઓલ્સો. એકચ્યુઅલી બધા જ ડાન્સ, કદાચ બધા ડાન્સ ફોર્મ મને બહુ જ ગમે છે. તમે બ્યુટિફુલી કરો તો કોઈ ડાન્સ, વેધર દેટ ઇઝ સાલ્સા ઓર વેધર દેટ ઇઝ હિપ હોપ ઓર વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ, એના પ્રપોર્શનમાં તમે કરો તો બધા ડાન્સ બહુ જ સુંદર જ લાગે છે. We have noticed that you truly enjoy being a rounded student and always surrounded by them. What motivates you to stay so connected with students? उनका इनोसेंस. वो जो बिंदास, मेरे इंस्टा में भी अगर आप लोग देखोगे, मेरा इंस्टा ओपन किया तो सारे बच्चों के ही वीडियोस आते हैं. सो उनका जो मासूम वो चेहरा होता है, उनकी जो एक फियरलेस होते हैं, कुछ भी बक दो उनको કોઈ ફર્ક નહીં પડતા. હું તમારી લોકોની સાથે શેર કરીશ. હું એક છોકરાને, લિંકન કરીને એક છોકરાને હું ફોલો કરું છું, એ લોકોનો જે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે. ઓ માય ગોડ, દેટ કિડ ઇઝ અમેઝિંગ. અને કોઈને કશે એક બહુ જ સરસ એક રીલ પણ મેં જોયું, મારા ક્લાસમાં પણ છોકરાઓ આવે તો એ જે ક્વેશ્ચન પૂછે, કશું કોઈ જ વસ્તુનું કંઈક સાવ રેન્ડમ જ વસ્તુ હોય, અને કોઈ આવીને એકદમ જ એવું કહી દે કે मैडम तो कुछ अच्छा सिखाओ ना. तो मैंने कहा अच्छा नहीं सिखा, नहीं लेकिन आप तो क्या वो ये 1 2 3 4 ऐसे ही सिखा, कुछ अच्छा सिखाओ ना आज मैडम. तो ये जे इनोसेंट આપણને ઓલવેઝ એવું થાય, ઇફ આઈ હેવ ટુ સે the same thing to my parents or any elderly person, then હા એક્ઝેક્ટલી, કે આવું કહેવાય કે ના કહેવાય. પણ છોકરાઓ તો આવીને કંઈ પણ એ જે માસુમિયત, એ ફિયરલેસ પેલું હોય છે ને, એ લોકોનું ગાંડપણ જે હોય છે ને. અને જ્યારે હું લાસ્ટ યર તમારા લોકોના એડવર્ટાઇઝમાં આવી હતી ત્યારે મેં મારો એ વિડીયો પણ છે કે હું માર્ક્સ આપતી હતી તો એક છોકરી કોન્સ્ટન્ટલી મારી સામે જોયા કરતી હતી. And she was like constantly looking at me, dancing, giving expressions and everything, but at the same time her eyes was like constantly मैं कितने marks दे रही हूँ, आम કરીને ત્યાંથી એ જોવે. So that was like really very nice. कि અને इस बार भी एक लड़की आई और उसने मुझे पूछा कि हमारा गिफ्ट कहाँ है, हमारा तो वो सारी चीज़ें जो उनके मासूम चेहरे होते हैं, वो शायद वो जो मस्ती होती है ना. और हमेशा मैं सबसे कहती हूँ कि जो अंदर जो बच्चा है ना, उसको हमेशा ज़िंदा रखो. वो हमेशा फियरलेस रहने का, और वो चाइल्ड लाइक हार्ट जिसे हम कहते हैं ना, चाइल्डिश मत रहो, लेकिन वो जो चाइल्ड लाइक हार्ट होता है ना, उसे हमेशा ज़िंदा रखो. वो हमेशा आपको नई नई चीज़ें सीखने में इंस्पायर. बच्चे को अगर आप देखोगे तो वो कॉन्स्टेंटली दे आर इनटू लर्निंग न्यू थिंग्स, कि आज ये सीखा, आज वो सीखा. दे आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एक डांस का वीडियो भी मैंने कहीं पर देखा था, तो પેરેન્ટ્સ આપણે લોકો અત્યારે હવે દાખલા તરીકે આપણે લોકો પરફોર્મન્સ કરતા હોઈએ અને આપણને ભૂખ લાગી હોય તો વી નેવર એક્સપ્રેસ, વી નેવર સે, especially during the performance. That girl was like performing and suddenly she told her mother. એને એક્ટ કરીને એવું કીધું કે મને ભૂખ લાગી છે. And everybody was like laughing. એ મારી પાસે વિડીયો હશે તો હું તમને લોકોને મોકલીશ. પણ એટલે આ જે બધી માસૂમ પેલી હોય ને કે જ્યાં કોન્શિયસ તમે હો જ નહીં, એ વસ્તુ કદાચ મને કનેક્ટ કરી રાખે છે છોકરાઓ સાથે. Now we are moving towards the next and the fun segment of all, which we Divyapathyans like to call quick bits, which you have to answer our questions as quick as possible. Not possible. Morning riyaz or late night practice? Depends on your mood. But otherwise,
people say this, that morning riyaz is better. Stage performance or camera performance? એટલે બંને important છે, but yeah, stage is like more, because that time you don't have retake and everything, so stage is like better. Favorite poet whose words inspire you? Kuvan Narayan ji. Ghungru, pen or microphone, which feels the most powerful in your hands? Ghungru. One word you would use to describe the sound of ghungru? शांति मिलती है, peace. Your secret routine before tying ghungru? Just pray karo na, otherwise there is nothing like much thing, but yes, I always do prayers. One word your students would like to use to describe you? Funny. હંમેશા એવું કે જિગીશા મેમ તમારી જેટલા ફની ટીચર અને આમ એકદમ ધમાલ મસ્તી કરાવડાવે. Dream stage you have performed on or want to perform on? Mostly no, because I always believe that wherever I'll perform, it's like yes, dream for me. And yes, कि performance જ બહુ important વસ્તુ છે, whether that is small stage, whether that is big stage, whether that is like right now also it's a kind of stage only. So have you perform and have you convey your thing, that is like more important. So not any kind of dream that this stage or that stage. તમારી જાતને એક્સપ્રેસ કરવું, it's more important. So yes. Person who inspired the most? Parents. Career advice for performing art? Be passionate and be sincere about things. Yes. And yes, one person is also my parents, and my dadi was like my big inspiration. She was into gymnastics during those times, and she never changed her surname after marriage. और वो जिस तरीके से सोसाइटी में काम करती थी, so yes, not because of she was my dadi and they are my parents, so I'm saying this, but the kind of work they are doing for the society and what my dadi has done, very आज भी सब लोग सौराष्ट्र में बोलते हैं, जब मैं जाती हूँ तो तुम विरबाला बहन की पोती हो. सो आई फील लाइक रियली वेरी प्राउड. उनके नाम से मैंने सब लोगों को एडवांटेज भी बहुत लिया है कि विरबाला बहननी દીકરાની દીકરી છું. સો યસ, ऑफ कोर्स. क्लासिकल बंदिश और बॉलीवुड ठुमरी? डिपेंड्स कि अगर बॉलीवुड ठुमरी भी अगर अच्छी हो तो कोई, लेकिन हाँ, क्लासिकल बंदिश. A book or poem that changed your perspective? Book. One thing which you generally forget at your home while living? If it is important, then no. Art in 2 words? शांति ही मिलती है, वो भी अच्छी आर्ट हो तो. Now, when we have reached to the end of our beautiful interactive session, we would like to know, how did we do? Did we meet your expectations? Yes, of course. For me it was a challenge. कि मैं ऋषिका से कल पूछ रही थी कि कैसे सवाल पूछेंगे. I was like so nervous and it was like fun, and you both are like so talented, and what Divyapat and your teachers are doing for you guys, it's like really very nice. And every day Rishika is coming up with new ideas कि ये करेंगे वो करेंगे. और जब मैं इनिशियली स्कूल में आती थी, और हर कोई धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करता है, और व्हेन आई सी प्रोग्रेस, टुडेज प्रोग्रेस, एंड इट्स लाइक रियली वेरी नाइस. एंड इट्स रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू बोथ. कि बहुत ही एक्सप्रेसिव हो तुम लोगों, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, और स्कूल भी आप लोगों को इतना कुछ दे रही है. ऋषिका के साथ मैं बात कर रही हूँ तो ऋषिका बोल रही थी कि स्कूल में कंपलसरी है कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी, उसे असेंबली में 2 लाइन्स तो 2 लाइन्स, इट्स कंपलसरी, यू हैव टू speak. So it is really very good for your personality, and what you are doing, like taking interviews. आप उस फील्ड में जाते हो या नहीं जाते हो, कि कोई भी फील्ड में जाते हो, लेकिन ये इतने लोगों से मिलने का आप लोगों को मौका मिलता है. और जिस तरीके से आपने ये सारा प्रिपेयर किया, स्टडी करना किसी इंसान के बारे में, अपना खुद का स्टडीज़ और खुद के चैलेंजेस तो जो भी है, लेकिन
मेरे बारे में तो मेरे बारे में इतना स्टडी किया, और एक दो सवाल ऐसे भी थे कि मुझे भी ऐसा लगा कि ओ ये आपने ऑब्जर्व किया शायद कि बच्चों के साथ आप ज़्यादा एंजॉय करती है, तो वो शायद या तो ऋषिका ने आपको बताया या तो फिर आपने देखा मुझे. सो लिटिल ऑब्जर्वेशन, लिटिल थिंग्स, या. What is your opinion on our school initiative on Heroes of Ahmedabad? Brilliant. Already I answered for that. What Rishika has come up with this idea, it's really very nice. Yes. Thank you so much for your feedback and precious time. You have inspired us like no one else can. You were kind enough to let us through your journey while motivating and inspiring students like us. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं शायद वो मानती नहीं हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हो और मैं बड़ी हूँ. ऑलवेज आई बिलीव दैट मैंने बर्थ लिया सो मैं बड़ी लगती हूँ. अदरवाइज देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि वी ऑलवेज शेयर अवर एक्सपीरियंसेस. शायद आपके एक्सपीरियंस मुझे काम आ सकते हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस आपको काम आ सकते हैं, और रादर देन मैं हमेशा ऐसा बिलीव करती हूँ कि मैं बड़ी हूँ या उम्र में जो बड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी मानती हूँ वो आपको बता दूँ. मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, और इस कन्वर्सेशन में भी बहुत कुछ मेरे पास से आप लोगों ने जो जाना, आपके पास से भी मैंने बहुत कुछ सीखा. तो वो किस तरीके से इंटरव्यू लेना है, किस तरीके से तैयारी करना है, ये बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं. सो या. Now it's wrap up time. But before that, can we just ask you to sing any favorite classical ठुमरी or classical piece of yours? वालमनो नामे तो मध मीठो नाम, इन्हें बोलो तो केम करे बोलो, बोलो बोलो वालमनो नाम. और नो आद्वार मोरा प्रीतम नु धामने, खोलूं तो केम करे खोलूं, वालमनो नाम, वालमनो नामे तो मध मीठो नाम, इन्हें बोलो तो केम करे बोलो, बोलो बोलो वालमनो नाम. I got goosebumps. You sang so beautifully. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. Thank you, ma'am. વેલકમ. મને પણ બહુ જ મજા આવી. મારો આજનો દિવસ બહુ જ સરસ ગયો. એન્ડ ફ્રોમ ધ અત્યારે એવું નહીં કે આટલો જ ટાઈમ સારો ગયો. સવારથી આઈ વોઝ લાઈક એક્સાઇટેડ દેટ બધા આવવાના છો તમે લોકો, અને બહુ જ ઘણા વખત પછી, વર્ષો પછી, એકચ્યુઅલી ઘણા વખત નહીં, વર્ષો પછી મેં આવી રીતે કેમેરા ફેસ કર્યો છે. એટલે આ તમે જે સેલ્ફ બધું કર્યા કરો, દેટ્સ અ ડિફરન્ટ નરેશન એન્ડ એવરીથિંગ, બટ આવી રીતનું it's a very different thing, and you have to be like really very alert while you are answering, you know. એ બધું વસ્તુઓ કલેક્ટ કરવી પડે, અને તમારે બહુ જ, અને જે મારા માટે બહુ જ અઘરું છે, એકદમ પ્રિસાઇઝ રહેવું પડે. મારે તો હું તો બહુ જ લાંબુ બોલતી હોઉં છું. આ લોકો તો બધા મને કહેતા હોય ને કે થોડુંક ટૂંકમાં બોલ. ખંતિલ તો મારી સામે બેઠો હોય, આમ હું જેવું બોલવાનું ચાલુ કરું એટલે શોર્ટમાં, મેં તો જો શોર્ટમાં નહીં પતે યાર. એટલે હું કોન્શિયસ પણ બહુ જ હતી કે હું કઈ રીતે બોલીશ, શું કરીશ. ઓકે, હા, મજા આવી. ઇટ વોઝ ફન. ફન વિથ લાઈક again it's like learning thing, that New experience. a new experience, and again you have to be like everything you have. I have expressed everything, you know, about all my journey and 50 years journey, 52 years journey. પણ એ કઈ રીતે શોર્ટમાં કહેવું, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ વિધાઉટ ફર્ગેટિંગ એનીથિંગ, એન્ડ નો, એટલે એ બધું એક લર્નિંગ છે, એટલે મજા આવે. થેન્ક યુ. Thank you.